السلام علیکم ناظرین رات 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جمس مز آز آل جے اینڈ کے جج سبھا طرف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ایل جی منوج سنہا تو سبھا کیو ذمہ دارو تو عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ ایل جی منوج سنہان ونمت یہ آپریشن سندورس دوران پاکستانس مز ملٹنٹن ہند ٹھکانہ تباہ کرنا آئی تت جموں کشیر ہند لوکو طرف تہ ملکس ست یکجہتی ہند اظہار کرنا آمت یم ست فورسز جوانن ہند حوصلہ بلند سپدن یل زن تمو ون ملٹنسی ہند خاتمہ کرنس حوالہ روز جنگ جاری تو پریت اکس پزِ ملک کس مفادس مز کام کریں پردیش میں ایک آکروش تھا، ابال تھا، آپ میں بھی وہ ابال تھا۔ 15 دن کے اندر ہی ماں بھارتی کے ویر یودھاؤں نے آپریشن سندور کے دوارا پاکستان کے اندر گھس کر کے آتنک کے 9 بڑے اڈوں کو دھوست کیا۔ 100 سے زیادہ آتنکوادی مارے گئے۔ ان زخموں پر مرہم لگانے کا کام بھارتی سینا کے ویر جوانوں نے کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان گھاؤں کی ٹیس ابھی بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر میں گن گن کر کے جب تک ایک ایک آتنکوادی کا صفایا نہیں ہو جاتا تب تک آپریشن سندور پورا نہیں مانا جائے گا۔ امن اور ترقی کے دشمن اور ہر ایک آتنکی سنگٹھن کی کمر جب تک پوری طرح سے ٹوٹ نہ جائے، مجھے لگتا ہے کہ تبھی وہ آپریشن سندور پورا ہوگا۔ میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں جموں کشمیر کا یہ سروچ سنکلپ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آتنکواد اور ان کے سمرتھکوں کو پوری طرح سے جموں کشمیر سے ودا کیا جائے۔ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ہم نے بھی شردھانجلی دی اپنے بہادر سینکوں کو، سینا کے جوانوں کو۔ کئی یودھا ہمارے بیچ سے چلے گئے۔ جموں کشمیر کے کئی ناگرک بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ ہم ان کی پنیہ اسمرتی کو بھی پرنام کرتے ہیں، انہیں بھی شردھانجلی ارپت کرتے ہیں۔ بھارت اب ایک نئے یگ میں پرویش کر گیا ہے۔ کل تک ہم دنیا کی 5ویں بڑی ارتھ ویوستھا تھے، آج دنیا کی 4تھی بڑی ارتھ ویوستھا ہم بن گئے ہیں۔ اب امریکہ، چین اور جرمنی یہی 3 دیش ہیں جن کی ارتھ ویوستھا ہم سے بہتر ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب دنیا کی تیسری بڑی ارتھ ویوستھا ہم بن جائیں گے۔ آپریشن سندور کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جموں کشمیر پولیس، سینا، سی ایف ایف کے جوانوں نے بھی ہتھیار بند آتنکوادیوں کے خلاف کارروائی تیز کیا ہے۔ ایک ہے کہ زمین جموں کشمیر کی آتنکواد سے مکت ہو، اس کا ہر پریاس کیا جائے گا۔ ہتھیار بند آتنکی ہوں یا ان کے سفید پوش سرپرست ہوں، ان دونوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ آتنکوادی تو گولی چلا کر کسی کی جان لیتا ہے، یہ جو سفید پوش سرپرست ہیں یہ پورے سماج کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ ان کے کرموں کی سزا ملے اور ایسی سزا ملے کہ آنے والی 7 پشتیں یاد کریں، یہ بڑا آوشک ہو گیا ہے۔ پاکستان اور اس کے آتنکوادی سسٹم یہ بھارت سرکار کے نوٹس میں ہے، اور ماننی پردھان منتری جی نے پچھلے دنوں ہی کہہ دیا تھا کہ بھوشیہ میں یدی کوئی دساہس پاکستان کے دوارا ہوا یا کہیں آتنکوادی گھٹنا ہوئی تو اسے ہم ایکٹ آف وار یدھ مانیں گے، اور پھر
ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित है फिर अपना काम उसी तरीके से करेगा। एक बात बड़ी साफ है कि भारत युद्ध का समर्थक कभी नहीं रहा है। रंगवारा उशकुरा वर्मुलिस मज आज शाम पे गुज्जर होस्टलस मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरा होस्टल इमारत हेन आई। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम तो नार वारदात मज इमारत खाकिस्तर सपदमुत यथ दौरान इमारत मज मौजूद साज सामान ते नारबूज सपद। बारामूला उशकुरा रंगवार का जो इलाका है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले गुजर हॉस्टल में अचानक आग नुमदार हुई और उसके बाद जो है आनन फानन में यहाँ पे मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त की गई इस आग को बुझाने की। और देखा जाए बताया जाता है ये अभी थोड़ी देर पहले ये इंसिडेंट पेश आया और फायर सर्विस अमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी वो भी यहाँ पे पहुँच गए। खुसूसन यहाँ पे 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है वो भी यहाँ पे नजर आए और किस तरह यहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की बात करें, फतेहपुरा का इलाका है जहाँ पे दो अलग अलग इलाकों में दो मालूम है जो है अलग अलग इंसिडेंट जो है पेश आए पिछले हफ्ते और उसके बाद जो है आज इस इमारत में आग लगी। फिलहाल यहाँ के मुकामी लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले पेश आया किस तरह आग लगी और कितना क्या नुकसान हुआ? एक्चुअली यहाँ पे वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उन्होंने ही देखा फर्स्ट नाल क्या हो गया था, तो वो उठ के बेचारे यहाँ से सब वो बच्चे दौड़ गए। उस वक्त यहाँ कोई भी नहीं था जी, तो वो बच्चों ने जाकर बड़ी हिम्मत से जितनी आग बुझाई जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। बच्चे सारे सलामत हैं, सारे ठीक ठाक सब सेफ, सब सेफ, शुक्र है खुदा का कि सब सेफ। बताया जाता है चंद एक बच्चे जो है यहाँ पे 2-3 बच्चे जो है वो जख्मी भी हुए हैं। हाँ हुए हैं, उनको ले गए हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल ले गए उनको। फायर सर्विस अमला जो है वो सही टाइम पे सही टाइम पे पहुंच। फिलहाल नुकसानात के हवाले से बात करें, नुकसान कितना हुआ यहाँ पे? नुकसान तो देखो जी, अब बिस्तरे वगैरह फर्नीचर वगैरह वो तो आपको पता है जब आग लगती है कोई पानी से खराब होता है, कोई बाहर से फेंकते हैं, वो तो खराब होना ही होना है। नुकसान तो हुआ है। ये टाइमिंग क्या थी उस वक्त, एग्जैक्ट टाइम क्या था उस टाइम? 6:30। आग नौदार हुई है हॉस्टल के ग्राउंड। देखते देखते 2 कमरों में आग लगी, 2 कमरों से आग फैलते सब। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का, एसपी साहब का, जिनको हमने कन्वे करते उन्होंने एक ही जगह 4-4 फायर गाड़ी है यहाँ भेजी, वरना यहाँ ये इंसिडेंट था कि यहाँ इर्द गिर्द बस्तियाँ, यहाँ काफ़ी डैमेज होने का खतरा था। तो जो नुकसान हुआ है, बच्चे तो 75 हैं, शायद 61 की 62% थे, बच्चे सारे सेफ हैं। शुक्र है खुदा का कि ये इंसिडेंट अगर हुआ शाम के टाइम और रात को नहीं हुआ, तो जो जानी नुकसान है उससे कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो पता चला कैसे यहाँ पे ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ और? बैक साइड की इस वाले एक रूम है बैक साइड का, वहाँ से आग नुमदार हुई। ये नहीं कह सकते शॉर्ट सर्किट था कि क्या इंसिडेंट था, लेकिन सडनली आग का फ्लेम जो है देखते देखते वो बढ़ गया। किचन इनका दूसरे साइड में है, तो किचन के इंसिडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आग जो हुई वो बैक साइड से स्टार्ट हुई। फायर सर्विस अमला टाइम पे पहुँच गए। शुक्र सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है डीसी साहब का और एसपी साहब का, जिनको हमने फ़ोन करते उन्होंने तुरंत से तुरंत यहाँ फायर सर्विस हमें भेजी और जिसकी वजह से यहाँ कोई इर्द गिर्द बस्ती में कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चे सारे सेफ हैं? हाँ, बच्चे सारे सेफ है, शुक्र है खुदा। नुकसान के हवाले से बात करें, नुकसान कितने हैं? नुकसान शाम के टाइम बता नहीं सकते, अब नुकसान जब लास्ट पर कल ये देखेंगे कहाँ का कौन कौन सा रूम है, लेकिन इस टाइम आग बुझ गई है, फायर कंट्रोल में है, ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ी कैजुअलिटी। शुक्र है खुदा का कि सारा सब सेफ है। शुक्रिया। बारामूला उशकुरा रंगवार का जो गुजर हॉस्टल है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले इस इमारत में आग नुमदार हुई, हालांकि आनन फानन में यहाँ पे फायर सर्विस अमला भी पहुँच गया और इस आग पे जो है काबू पा लिया गया। फिलहाल मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त की गई और देखा जाए इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी वो भी यहाँ पे पहुँच गए। फिलहाल खुसूसन देखा जाए इस इलाके की बात करें जहाँ पे आप देख सकते हैं रिहाइश पजीर इलाके के लोग जो यहाँ पे पहुँच गए। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यही वो इमारत है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले आग लगी और उसके बाद जो है फायर सर्विस अमला भी यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचा। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने नौजवानों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे दीगर जो अफसरान हैं उनके साथ हमने बात करी और उनका ये कहना है कि फ़िलहाल जो है इस आग पे काबू पा लिया गया। और नुकसानात के हवाले से बात करें, नुकसान जो है वो लाखों में हुआ है और तकरीबन 60 से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे ज़ेर तालीम है उनको जो है बाहर निकाला गया, वो उनको जो है सेफ मुकामात पे रखा गया। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
श्रीनगरस मज आज PDP हेडक्वार्टर्स पे PDP पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती हंदिस सदारतस मज मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज पार्टी अहदारों तो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत पार्टी लीडरन वन आमुत तम गन लूकन ताम वातन कोशिश करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन ये जन डॉक्टर महबूब बेगन वोन योदवे लूकन कया वमेद अवामी हुकूमत सत वाबस्त ताहम सरकार तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले कह रोड मैप तैयार करना आमुत ये जन तमो वोन नवाज सुबह मज रेजोल्यूशन पास करनस छन कह वकत बल्कि पज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी असम्बली मज युत रेजोल्यूशन अनिन युत जन आम लूकन फायदे तो राहत वाते। देखिए, आम लोगों ने तवक्कात वाबस्ता की है इस गवर्नमेंट से। इनको एक यकतरफा मैंडेट दिया, कश्मीर वैली को ले लीजिए, पीर पंजाल को ले लीजिए। सवाल है कि 7 महीने में उमर साहब ने क्या किया असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां, यहाँ बेकारी बेरोज़गारी है, वो 1 लाख नौकरियां शायद एनुअली देंगे। 7 महीने हो गए, कितनी नौकरियां मिली लोगों को। उन्होंने कहा था मेरा काम है ये जो स्मार्ट मीटर है इसको बंद करके लोगों को बिजली की जो फीस है उसमें कमी करनी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था हम कुछ गैस सिलेंडर वो फ्री में देंगे, तो उन्होंने उस पर क्या काम किया है? जहाँ तक उनका ये कहना है कि ये यूटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमने केजरीवाल को भी देखा है। अगर वो यूटी दिल्ली में वो काम कर सकते हैं, उनका हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ में उन्होंने कितने काम किए। एजुकेशन में उनको इंटरनेशनल एक्लेम मिला, एजुकेशन में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई। तो कम से कम केजरीवाल साहब से ही सबक हासिल करके उतना ही थोड़ा करें जितना केजरीवाल ने किया था। देखिए, नवाई सुबह में रेजोल्यूशन पास करना और असेंबली में पास करना, उनको मैंडेट लोगों ने दिया है। नवाई सुबह के लिए नहीं, वो तो पार्टी का मामला है, पार्टी का हेडक्वार्टर है, कि वो असेंबली में ये बातें करें। असेंबली में बचने के लिए वो ऑन रिकॉर्ड लोगों के लिए रखना चाहते हैं कि उन्होंने नवाई सुबह में ये सब कुछ मेरी गुजारिश उनसे होगी, जो उन्होंने नवाई सुबह में किया वो पार्टी अफेयर्स है। वो लोगों को जिनका मैंडेट दे के वो इस वक्त फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो बताएं कि वो असेंबली में लोगों ने क्यों नहीं देखा आपको वो रेजोल्यूशन लाते हुए, उन रेजोल्यूशन पे डिबेट करते हुए और उन रेजोल्यूशन को पास करते हुए। इसलिए उमर साहब मेहरबानी करके नवाई सुबह आपका पार्टी हेडक्वार्टर है, उसको पार्टी हेडक्वार्टर रखे। लोगों ने आपको असेंबली में भेजा है, असेंबली में इन रेजोल्यूशन को लाइए, इनको लाइए और वहाँ पास कर लीजिए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरील मावर हंदवरिस में आज एजुकेशन कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ मज मेंबर असम्बली लंगेट तो महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे तलीम हवाले कथन दल दिन आव तत अब्दुल रशीद वारस एजाज सान रुखसत करना आमुत। ये जन मेंबर असम्बली लंगेट खुर्शीद अहमद शेखन वोन तिज कोशिश रोज इलाकस मज तलीम बुनियादी ढांचे मजबूत कर युत जन तलब इल्मन मयारी तलीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। जैसा कि आपने फरमाया कि एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कम फेयरवेल फंक्शन थी जो यहाँ जनाब अब्दुल रशीद वार साहब जो यहाँ एक्स हेडमास्टर थे, तो उनके ऑनर में, उनके एजाज़ में थी। तो और जैसा कि आपने फरमाया कि बिल्कुल काफ़ी सारी जो शख्सियात हैं वो यहाँ पे मौजूद थी और इस प्रोग्राम में, इस फेयरवेल फंक्शन में शिरकत की, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल जो है का वक्फा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया। और हमारी प्रायोरिटी है, हमारी कोशिश है कि जहाँ पे भी एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो लिहाजा मेरी कोशिश रहेगी कि अपने जो एजुकेशन सेक्टर में हम एक तब्दीली लाएं और एक इनकलाब लाएं इंशाल्लाह रहमान अपनी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो जहाँ पे भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हवाले से या दूसरे जो मामला थे स्कूल के रिलेटेड, टीचर्स, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को सुनते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है इनके मसाइल का जो है अज़ाला किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हद इख्तियार में है, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट की पॉलिसी होती है, जो सरकार की पॉलिसी होती है। तो इसमें मैं मैंने असेंबली में भी इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई और मैं आज भी आपके थ्रू, आपके माध्यम से ये अपनी सरकार तक, अपने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। और इनफैक्ट हमारी 28 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को रेज़ करेंगे कि
इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम दे सकते हैं और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी इस वक्त, लेकिन स्टाफ की काफ़ी कमी है। लेक्चरर्स के जो काफ़ी सारे पोस्ट हैं वैकेंट है, मास्टर्स के काफ़ी सारे पोस्ट वैकेंट है, हेड मास्टर्स के पोस्ट वैकेंट है। कुछ ऐसे हमारे जोन की अगर बात करें, इस वक्त हम जोन मावर में हैं, अगर हम जोन मावर की बात करें तो लगभग 40% जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे हेड मास्टर्स नहीं है। लगभग जो भी हाई स्कूल्स या हायर सेकेंडरी से जो मास्टर ग्रेड है खाली हैं, जिनकी ट्रांसफ़र हुई या जो प्रमोट हुए उनके रिप्लेसमेंट्स नहीं आए। जो लेक्चरर्स हैं वहाँ पे CRCs को जो है मिड सेशन भेजा जाता है, जब तक हाफ ऑफ द सेशन हमारा जो है वो ख़त्म हुआ होता है। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं जो एज ए लेजिस्लेटर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जस्ट सिर्फ आवाज़ उठाना है। मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, लेकिन सरकार को देखना है कि किस तरह से है जो है इन चीज़ों पे जो है इन मसाइल का अजाला निकाला जाए। और वैसे भी आप देख सर सईद मेमोरियल स्कूल सुरनकोटस मज आज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज चीफ एजुकेशन अफसर पुंछ स्कूल इंतजामिया तलब इलमो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे हाल 10वीं तो 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले तलब इलमन हज हौसला अफजाई कर आय। तत दोयमन तलब इलमन वन आमुत तिम गन मेहनत कर जन तिमन जिंदगी मज ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। Who is seeing me on the news channel. Myself, Atika Sara Khatana, a student of class 10th. We passed class 10th with 480 marks. I am feeling so much proud. Today our school has organized a function in which they facilitated the students, those who have got, all the students, those who have got good marks, along with my other mates who have got amazing marks in the examination of 2025. I am the one who got 480 marks from 500. Out of 500. It's a really biggest achievement for me. My parents are present here, all the teachers are present here. I have got the trophies as well as memento for my achievement as well as सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए फंक्शन एक ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जो 10th क्लास के टॉपर्स थे उनको इनवाइट किया गया था। उन्हें फैसिलिटेट किया गया हमारे वर्दी चेयरमैन सर इम्तियाज़ काज़मी साहब की तरफ से, और यहाँ की फैकल्टी और जो स्टाफ है उन्होंने भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और उन्होंने भी बच्चों को एक बूस्ट अप दी कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे उन्होंने इससे भी बेस्ट करके दिखाना है। मैंने इस स्कूल से 10th तक की स्कूलिंग की थी और मैं इस वक्त रिसेंटली जो 12th क्लास का रिज़ल्ट आया उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और आज मुझे वर्दी। नाजरीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। ओमपुरा बडगमिस मज ये आज महकमा इरिगेशन तरफ खार कोल हज सफाई अमल मज अन्न सत कोल अंद पे करना आमुत गैर कानूनी कब्जा हटाना आव। तत मुकामी लूको तरफ महकमुक शुक्रिया अदा करान वन आमुत ज महकम तरफ सही कदम तुलना आमुत यम सत मुकामी जमींदारन सठई राहत वात। देखिए ये जो एनकरेजमेंट है ये काफ़ी सालों से हुआ है। तो नालों की सफाई जो है वो पिछले कई सालों से उन्होंने की, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं होती थी। लेकिन अब हमें एक खुशकिस्मती की बात है, एक्जन साहब आए हैं महराजदीन इरिगेशन डिवीजन बडगाम के, जिन्होंने एक एक्सट्रीम सेटअप लिया है और हम उस सेटअप के साथ है, क्योंकि यहाँ कई जगहों पर ऐसा एनकरेजमेंट हुआ है। हमारे हजारों कनाल एग्रीकल्चर लैंड है जो अब सूखने पे आए हैं, तो जिसमें हमें ये अब खदशा लायक होने लगा है कि वो फसल के लायक नहीं रहा है। जो सेटअप इरिगेशन डिवीजन बडगाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है हम इसके साथ है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी एनकरेजमेंट है जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, हम आपकी चैनल की वसादत से खानपुरा में जो कुछ घर सफाई इरिगेशन दफ्तर से है, इरिगेशन दफ्तर में से हमने अफसरों ने, जो मैडम है हमारी AEE या हमारा एक्जन साहब है, उन्होंने हमें फुल ऑर्डर्स दे के रखा है साल के लिए। मतलब हम ये होता है, मतलब स्टेज में सब जिम्मेदारी होता है साल का। ये मुझे साल का जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे। लेकिन हमें कुछ घर वाले हम तंग करते हैं। मतलब देखो हमारे ऊपर में जो प्रॉब्लम है हेड पे, इसका कुछ घर हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हम उनसे बरादरी की तवसत किया, मतलब गाँव की तरफ से यहाँ 5 गाँव है, शेखपोरा, नारकरा, ओमपोरा, बटार वगैरह बहुत सारे गाँव है। लेकिन हमें पानी की बहुत मजबूरी है इस वक्त। मतलब हमें काम चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब वो हमें ताउन, हमें टाइम निकल रहा है, हमारा वो थाल वगैरह वो सब खराब होने लगा है। अब हमें मेहरबानी करके आपकी वसादत से हम उनको इस कड़की धूप में आए हैं और आप देख रहे हैं खुद ही यहाँ पे औकाफ कमेटी ओमपोरा भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, AEE भी है, एक्जन साहब भी है और JE साहब, सारे इरिगेशन, पूरा इरिगेशन अभी ओमपोरा कनाल के पास ही है। और कुछ लोग हमें यहाँ पे
तंग करते हैं कि एनकरेजमेंट उन्होंने किए हैं कि इनको हम बोलते हैं आपकी वसादत से इनको एनकरेज हटाइए। स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है, काम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे भी चल रहा है, इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि मेरा साहब जो एक्जन साहब है बहुत अच्छे इंसान है, उसने हमें बहुत कोऑपरेट किया। कल पुलवामा के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुद यदवे लसपुर इंडस्ट्री मज बरामद सपदन वाजन ोट रेंब आरस मज त्रावन तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुद यम किन मुकामी लूक मोयूस सपद। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद इंडस्ट्री हज ोट कुछ मखसूस जाय डंप करने हवाले गन कदम तुलन yin युत जन रेंब आरच सफाई यकीनी बनाने यी तो लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश तो तजब्जुब दूर करने यी। इससे पहले भी आपको पता है कि बहुत बार आप भी आए तो आपने देख लिया कि हमने कितनी बार कितनी कोशिश की। उसके बाद हमने एक डंपिंग साइट यहाँ रखी थी, उसके बाद गांव वाले आ गए, उनने वहाँ पर हमें माना नहीं कि यहाँ मत डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कुत्ते वगैरह उसका यानी कि फेंसिंग नहीं किया गया सिडको वालों ने। उसके बाद उन्होंने तर्ज में एक साइट मुंतखब की, लेकिन रात के वक्त कोई ट्रैक्टर वाला आ रहा है, कोई टिप्पर वाला आ रहा है, गाड़ी वाला कोई भी, जिसको कोर्सोर वालों ने ये कंट्रैक्ट दिया है, उसके बाद वो डालते हैं रंबियारा नाला में। वो ट्रांस ले जाने में उनको मुश्किल होती है क्योंकि वो दूर पड़ता है, उनको नज़दीक पड़ता है यहाँ पर, तो ये डालते हैं। लेकिन ये एथिकली ये तो गलत बात है, क्योंकि जो इतना भी पानी इसमें है रंबियारा नाला में वो नीचे जाता है, ये पानी पूरा आलूदा होता है, लोगों को बीमार होने का खदशा है, अंदेशा है, इससे बीमारी फैलती है, ये तो गलत बात है। अपील है कि सिडको अथॉरिटी से, और हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब भी आए, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी आए, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए, हमने उनसे भी गुजारिश की, हमने गवर्नर साहब को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी इस बारे में कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, डंपिंग साइट की प्रॉब्लम है, ताकि जो रंबियारा में आए हैं, जब हम देखते हैं तो जितना भी यहाँ सिडको इंडस्ट्री से कूड़ा करकट निकलता है, यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट निकलता है, वो सारा इसी में डाल दिया जाता है। एक तो इससे जो हमारा ये रंबियारा है इसको नुकसान पहुँचता है, और जो हमारा असासा है उसको भी नुकसान पहुँचता है। मेरी डीसी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इस सिडको इंडस्ट्री में कोई डंपिंग साइट आइडेंटिफाई करे, और जो भी यहाँ से कूड़ा करकट निकलता है वो उसमें डंप किया जाए, ताकि हमारा ये असासा बच जाए। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।